live now. Over to you, Comrade Saqib. Uh, Thank you, PSF. Uh, the current pandemic has, as we see, it has thrown up several challenges before us. Uh, Besides the obvious health and medical challenge, one of the biggest challenges has been related to the with regard to the education in the country, and particularly the challenge has been before the educational institutions and also governments to deal to deal with the pandemic with regard to the curriculum and overall educational scenario while the lockdown and the pandemic continues. So there's a lot of debate that has been generated with regard to what the institutions or universities with regard to the steps that institutions and universities have taken, particularly referred to as the online education, and the issues related to it, particularly what it brings to light, particularly what is referred to as the digital divide, especially when we discuss the issue of online education amid the ongoing pandemic. So to discuss more of this topic, today we have with us uh, student leaders of the three student organizations from India. We have Mayuk Biswas, General Secretary of the Students Federation of India. We have Vicky Maheshwari, General Secretary of the All India Students Federation. And we have Sandeep Saurav, General Secretary of the All India Students Association, ISAP. So the three speakers will have around 15 minutes each, and then it will be followed by question answers. The speakers can speak in any of the languages they prefer. So I invite first Mayuk Biswas from the SFI. Mayuk, please. Well, thank you, PSS, for giving us this opportunity. Well, you know, this Corona situation, the crisis of our generation. And we also believe that next few weeks will decide the world for years to come. And this thing, they will shape not only the health care system, not only social economic system, but everything. I mean, this total structure of our society. And there will be long-term consequences also. And you also believe that, as we observed in the past also, so many virus affect the virus and other, epidemics. And we also believe that this storm will pass and humankind will survive. But, and of course, most of us will alive, but will will inhabit in different world altogether. And we also observe this time that, as you know, this virus knows no boundary. But it's very unfortunate that it also reveals the attitude of the ruling class nakedly. And this attitude of the ruling class is also reflected in all spheres of our life. And as we, we are the students, and we are the stakeholder with the education system, and we also observe how they are affecting the policies of the ruling class, how they are affecting our education system. And as you know, comrade, just in the meanwhile, I just want to emphasize what is happening in this education sphere. तो कॉमरेड इस संकटपूर्ण घड़ी में सरकार अपनी नीति हम लोग देख रहे हैं लागू करने का कोशिश कर रहे हैं. They are trying to implement their policies in this pandemic situation. And in the beginning, we are fighting, as you know, all the students organizations unitedly, and mostly the three students organizations are here. SFI, ASF, ISAT there, and PSF is organizing this talk show. And all of us, we unitedly fought against the policies of the central government. We fought in the policies of the fee hike policies, new education policy. We fought,
But now you see the same policies now they're trying to implement. They're trying to implement this, I mean, this privatization policies. That's, I mean, this few days back also, the way they're trying to implement the labor law, they're trying to change the labor law, the same thing they're trying to do. To, what and now they're trying to implement this online facilities, online education system right now. Now they're saying this is after this technological advancement, this is the only alternative right now. और इसी का ही गुणगान कर रहा है ये सारे लोग. And now what they are doing from the school to university level, they are trying to change the whole education system into this, I mean, this online system. And now these private schools, naturally, they are taking this huge amount of fees. So they are continuing their class through this online education. But, and as you know, is still now the condition of our government school, they're suffering in pathetic condition in the most of the schools. In our country, the 34% school, they don't have roof on the roof. And now the government is talking about this online education system. Now, another thing, we also observe that in our country, this types of online education is completely unthinkable, because if you see that only to 8% household owns this, I mean, net connection, have this net connection. And this also observed that in the places, I mean, this while we are just trying to contact each other, we also observe how it was it was tough to communicate with each other, because this is net connection, net connectivity. There is a disparity between rural and urban population, and of course there are many factors are there. For example, what about this electricity? And electricity, only 16% household has I mean, this 8 hours of electricity. And now the thing is like that I mean, this the only actually this social structure, and it is reflected in the whole system. This the disparity, this inequality in the whole system, now it also reflected through the digital divide, and we believe this digital divide will increase much more inequality in the education system. But it's very unfortunate right now that central government, for example, the Nitin Gadkari, what he has said, the central minister, that education institute must be self-reliant, must be solely dependent on government, must not be dependent on government funds. And now that's what they are trying to do. They are just trying to, with the name of digital education, they are trying to implement this their privatization policy from the back door. And also, they are not talking about now. They are not giving any infrastructural facilities also in this time. But in the recent time, there's a tremendous protest against this online education system. For example, in the 15th May, Delhi University students, they launched a campaign. There is hashtag due against online exams. It was trained in Twitter. At the same time, we also observe there's some lack of attendance in the online classes also. But there are some factors there also, because as you know, most of the households, most of the students, they don't have such facilities in their home. As statistics also reflected the same story. And the students, the girl students, they don't have enough space in their room. They don't, कैसे मिलेगा उन लोगों को? ऐसा हो रहा है क्योंकि हम लोग ये भी देख रहे हैं इस टाइम में, जो लॉकडाउन का पहला 2 हफ्ते में ऑलमोस्ट जो डेटा आया है अभी तक, जो टोल फ्री नंबर में, चाइल्ड टोल फ्री नंबर में, वहां पर अभी तक 2 हफ्ते में सिर्फ 92,000 के ऊपर कॉल आया है. वो है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर कॉल आया है. और ये सब रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर. लोगों के पास काम नहीं है, लड़कियों के पास काम करना पड़ रहा है अभी घर में. और सबसे बड़ी बात है, ये ऑनलाइन एजुकेशन की बात ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक लोगों के पास काम नहीं है. 15 करोड़ लोगों का काम चला गया है इस लॉकडाउन के वजह से. और सिर्फ ऐसे ही तो हम लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब था, और भी बदतर होते गया ये इकोनॉमिक कंडीशन, ये लॉकडाउन की वजह से, इस अनप्लान लॉकडाउन की वजह से. और हम लोग ये भी देख रहे हैं, अभी सरकार जिस घर में अभी रेशन देना पड़ेगा, उस रेशन नहीं दे रहे. हम लोग बोल रहे हैं सभी सरकार को, जो 7,500 रुपया हर घर में दीजिए, और हर घर में मिड डे मील का बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि और सरकार ये बात नहीं सुन रहे. लेकिन हम लोग ये भी देख रहे हैं, जहां पर ये मिड डे मील का जब बात हो रहा है, ये मिड डे मील में
एक जो अमर्त्य सेन का जो प्रतिष्ठित ट्रस्ट का जो आंकड़ा आ रहा है, वहां पर सरकार पर हेड सिर्फ 4 रुपया 13 पैसा खर्च कर रहा है सिर्फ। और अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट जितना पैसा खर्च कर रहा है, ये नेशनल जो इनकम होना जो देना चाहिए जो पैसा, उससे बहुत ही कम है। हम लोग तो एसएफआई से बार बार हम लोग ये मांग कर रहे हैं, जीडीपी का 6% एजुकेशन के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। और अब हम लोग इस हालत में ये ड्रॉप आउट रेट अगर कम करना होगा, तो हम लोगों को ये जो 7 करोड़ 70 लाख जो फूड ग्रेन्स जो पड़ा हुआ है, जो अभी ये गोडाउन में पड़ा हुआ है, उन ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा गरीब घर में। मिड डे मील देना पड़ेगा, सभी स्टूडेंट्स को मिड डे मील देना पड़ेगा, तब तो कुछ बात बनेगा। लेकिन ये सरकार जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एवेल्यूशन और एग्जाम के ऊपर एम्पथाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग और ये ऑनलाइन एजुकेशन हम लोग ये नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि हाई स्पीड इंटरनेट बहुत सारे जगह नहीं है, 2G नेटवर्क ही नहीं है ठीक ठाक जगह, तो 4G का तो दूर की बात है। अभी ऐसा भी हालात है, हम लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र का दूर दूर के गांव में, जहां पर लोगों के पास खाना खरीदने का पैसा नहीं है, तो डेटा कैसे खरीदेगा वो लोग। तो हालत ऐसा है ये। इसके साथ साथ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है बहुत सारे। हम लोग ये भी देख रहे हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स सच एज दैट आई मीन दिस अनवांटेड एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स into Zoom classes and harassment of the female teachers, ये सारे बात हो रहा है ये सब। और गवर्नमेंट का कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ के वहां पर हम लोग देख रहे हैं एग्जाम एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट सब कुछ बंदोबस्त कर रहा है, ये सब करने का बंदोबस्त कर रहा है ये ऑनलाइन के माध्यम से। और देखिए अभी तक हर जगह कुछ टेक्नोलॉजी नहीं हुआ, तो हम लोगों का बात ये हम लोग ये बोल रहे हैं, डिजिटल एजुकेशन कैन नेवर बी द रिप्लेसमेंट। Even this must this must be only be utilized where there is universal access to digital equipment by all students in concerned area। तो ऐसे ही करना पड़ेगा। और हम लोग ये बोल रहे हैं इस फेस टू फेस पढ़ाने का जो बंदोबस्त है, उसका जैसे हम लोग बोल रहे हैं कुछ इसका और कुछ विकल्प नहीं है। तो हम लोग ये सारे बात हम लोग को एम्फसाइज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम लोग बार बार ये जो आंकड़ा हम लोगों के पास हम लोग बोलते रहते हैं, ये ऑनलाइन जिस इंटरनेट पेनिट्रेशन हमारे इंडिया में अभी तक 36% है पूरा देश में अगर देखें हम लोग। और ये ऑनलाइन एजुकेशन कितना इंक्लूसिव है। और हम लोग बार बार ये बात बोल रहे हैं, देखिए आज ही ऑनलाइन जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी था, जो मिड डे मील जरूरी था, ये अगर आप लोग नहीं दे रहे हो, और दूसरी जगह आप ये स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रहा है अभी सरकार। और so now that what government is trying to do now, this when we are protesting against these policies, and then from the very first day of this lockdown they are trying to use this health emergency, this central government. And not only that, they are trying to implement their own agendas in this time of pandemic. And now we also observe the way this arresting the voice of dissent. We are observing what is happening with Safura, the students of Jamia Millia Islamia, what is happening in Delhi University, and especially the students who participate in the anti-CA NRC protest or fee hike protest in Pondicherry University. They are denied scholarships. Then now students from Tripura, they are being targeted. While they are organizing blood donation camp, they were being targeted. In Assam now, they with that nobody can write or in Lal Salam in their post, or can they post just a picture of Lenin. So this is an emergency, like undeclared emergency like situation while they are trying to do. And in this situation also we also observe how the fees are also increasing. Government, we want that government must not take fees in this time, but government, and not only government, these private institutions, they are taking fees in the name of online classes. So these are completely unthinkable for the poor people, for the people who are coming from the even it is being very tough for the middle class families also in our country. Just see, for example, what we are saying, that 15 crores people lost their job, and now how they will give money for this education. So what we are, government must not take this education institution must not take the fees for 1 year. And not only that, that semester fee must be revoked. And now also we also observe the government is taking admission fee, registration fee, development fee, and even hostel fees also. But why? While
you were giving subsidy to the cronies. On the 15 cronies of our country, they are getting subsidy of almost 68,000 crore, and we have to give a fees. We are not getting fellowship. And now with this, all this, government is trying to implement this new education policy. So these are dangerous trends we are observing. At the same time, there is no plan. We observe that miserable condition of our migrant workers, farmers, what is happening with them. At the same time, the state taking, I mean, the students who are in, this stuck in their mess or in the hostels, how they will give their rent or how they will give their money. So that there also we have to talk about this thing. And in the coming future also, there will be a huge challenge in front of us because this of unemployment, and because what we believe that this is the crisis of our generation. And the crisis, this unemployment, the huge crisis of unemployment is a huge crisis for us. While government still now they're spending crores of money, lakhs crores of money after the unnecessary things, and they're spending crores of rupees for their for their election purpose. Now we don't know what will happen with this PM cares. In this PM cares, it will not audit in this situation. So all these things, it will be a problematic situation. And now that is why we have to fight unitedly against these policies of the central government each and every day. And that is why we formed that All India Forum to Save Public Education. That is a forum against CA, NRC also. So unitedly, whatever forum we are forming, we are fighting unitedly. As you know, this in the 20th June, this All India Forum to Save Public Education, where all these four organizations, SFI, AISF, ISAP, PSF, we are the part of it. And that campaign, that no to digital divide, hashtag no to digital divide, hashtag education without exclusion. So this campaigning went viral on 20th June. But now I think and we believe that now we have to do militant protest again. And if unitedly, we have to do this protest. In each and every corner of our country, the lay student organizations, we are trying to provide relief to the people. And but we believe that it is not enough, because this is the job of the government. But we have to compel government, we have to force government to implement the policies. If they are not going to take those policies, we have to fight again what we are like we are fighting in the past against this free hike policies, the policy of the central government, the policies of this anti-people and NRC, CA, NPR policy of the central government. We fought unitedly, and we'll fight unite also. But now we also believe that our generation, the militant voice of our generation and expression of our generation, we have to. That is why we have to fight unitedly. We have to take the words of the students, and I think in the future also, if the United Students Movement will advance and will show some weight for our country, and we not only the students organization, I think we have to extend solidarity with the workers, with the farmers, to change this social structure. And I believe the way it was erupted like volcano in the past, we'll do again, and we'll fight back and we'll win. With these words, thank you again for giving us this opportunity. We'll fight unitedly. Thank you, comrade. Thank you, Mayuk. Now I'll invite Vicky Maheshwari from the AISF. Vicky, please. Yes, Comrade Saqib. Am I audible? Just let me know. Yes, you are. Go ahead, please. So, comrades, as Comrade Mayuk have already made the situation very clear with all of you. So in the very beginning, comrades, because the things are very bad, not only for students, for youth, for farmers, for labor, and those people who were saying that there are no workers in India, now people have seen those million feet over the roads of India, on the highways of India, which were built by the those only labor people from the working class, and they had to walk on all those roads like without food and water. When we are discussing this idea of online education initiated by PSF comrades from
Mumbai. In the very beginning, it seems like for those students, I would like to address those who can afford a laptop or those who can afford a mobile phone. It seems like having a laptop, is it wrong? Definitely the answer will be no. Is People will say, if somebody is delivering a lecture from America or from any other country over a topic which we can't access in our universities, people will say definitely yes, there should be lectures on this. But considering all these things, that online connecting to internet, you can get access to kind of information and knowledge, you will have to first think, do you have food in your plate? You will have to ask the very fundamental question, the very first question. या तो हमें इस बात को समझ लेना चाहिए, because either you consider people from Kashmir to Kanyakumari or from all the sides एक boundary में, if you treat those people equally, और अगर आप समझते हो कि दे ऑल पीपल आर इंडियंस और उन लोगों को इंडिया में रहने का भी अधिकार है और उनकी वोट से सरकार भी चुना जा सकता है, तो माय क्वेश्चन इज, तो पॉलिसीज फॉर ऑल दीज पीपल शुड बी इक्वल. सो उस इक्वालिटी की बात करते हुए वी आर सेइंग दिस विद रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का पूरा सिस्टम अभी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, एज कॉमरेड मयूख ऑलरेडी मेंशन्ड इट लाइक राइटली, हम लोगों को ये कैंपेन क्यों लेना पड़ रहा है? और वी आर ऑल्सो डूइंग द कैंपेन क्योंकि आप घर से बाहर नहीं जा सकते, तो यू विल हैव टू डू द कैंपेन ऑनलाइन. द क्वेश्चन ऑफ एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, द क्वेश्चन ऑफ हैविंग एन इंटरनेट कनेक्शन बहुत बाद में चला भी जाता है. उससे पहले माने आप किस इंडिया की रियलिटी की बात करते हैं? वो इंडिया जिसके जिसके मतलब औरतों को घर में पीने का पानी लाने के लिए दे नीड टू वॉक लाइक 15 or 20 miles and they carry water on their heads and shoulders, और वो फिर घर पे आके खाना पकाती हैं. उस इंडिया में यू आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन, जहाँ पे कश्मीर में हम सब लोगों ने देखा बात तक नहीं कर पाए 6 महीने तक, माँ अपने बेटे से बात नहीं कर पाई, इवन के वो बहनें वहां पे, दोज पीपल दोज हु हैड मेडिकल इमरजेंसीज, उन लोगों को भी किसी तरीके से इंटरनेट ना होने की वजह से, फोन कॉल ना होने की वजह से, लाइक पीपल वर डाइंग. और उस इंडिया में वी आर सेइंग कि ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेप्ट इस तरीके से नहीं किया जा सकता. आपको याद होगा, द पीपल हु आर वाचिंग दिस लाइव, आई वांट टू मेक दिस मेंशन ऑफ कि मैरी कॉम का मैच देखने के लिए द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैड टू से कि हमें 8 मिनट का अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इस 8 मिनट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाना चाहिए. तो मतलब उसमें आप समझते हैं कि बच्चा कैसे उसको ऑनलाइन एजुकेशन को माने कर पाएगा जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और उनके पास किसी तरीके की सुविधा नहीं है. और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वी मस्ट अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ दिस होल सिस्टम. राइट नाउ द वे फाइनेंस कैपिटल इज ओवरपावरिंग प्रोडक्शन कैपिटल. जिस तरीके से पूरे सिस्टम को ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का एक पूरा चुटकुला उस दिन भी प्रधानमंत्री साहब ने सुनाया, उसमें से मोर देन 90% पैसा क्या है? वो पैसा है जो आपको ये सिखाता है कि अगर आपके पास पैसा है तो यू गो फॉर एजुकेशन. आप लोन ले लीजिए, आप लैपटॉप भी खरीद सकते हैं, देयर विल बी इंटरनेट फॉर यू एंड यू कैन गो फॉर एजुकेशन. तो इकोनॉमी हैज restricted to the people those who can afford, and when we say those who can afford, it's about only top 3 or 4% people. Rest of the 95-96% people जो इस देश की बुनियाद हैं, जिनकी वजह से ये देश खाना खाता है, जिनकी वजह से अंबानी और अदानी जैसे माने बिल्डिंगों में रह पाते हैं क्योंकि वो मजदूर का बनाया हुआ बिल्डिंग है, उन लोगों को सरकार ने एक हाशिए से भी परे धकेलने की बात की, बिकॉज दे आर नॉट द प्रायोरिटी. और ये अटैक अभी ऑनलाइन पे तो हम लोगों को कई बार व्हेन वी डिस्कस इट, इट बिकम्स फनी. जिस तरीके से जामिया में अटैक करके, जिस तरीके से जेएनयू में स्टूडेंट मूवमेंट को अटैक करके, फॉर दोज पीपल हु आर फाइटिंग टू सेव एजुकेशन सिस्टम, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, उन लोगों को अटैक करके आप अरेस्ट कर रहे हो, यूएपीए लगा रहे हो. यू कैन थिंक लाइक इफ देयर इज ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, तो फिर तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ क्लिक. You can click people and you can remove those people, and they are not able to claim that they are students anymore. So all these questions are there कि उन लोगों को जब तक ये बात if you will see this very situation, COVID-19 का सिचुएशन ने इस देश को, दुनिया को दिखा दिया कि अगर कोई चीज हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में कोई सेव कर सकती है तो दैट इज ओनली पब्लिक
एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ सिस्टम। और इसी वजह से था कि क्यूबा अपने डॉक्टर बिकॉज ऑफ देयर फ्री मेडिकल एजुकेशन सब दुनिया में भेज पाया, और हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दे लॉक्ड देयर हॉस्पिटल्स टू द वेरी नेक्स्ट डे, जब WHO ने अनाउंस किया दैट इट्स गोइंग टू बी अ पेंडेमिक। सो आई एम सेइंग ऑनलाइन एजुकेशन का सपना, देयर इज नो प्रॉब्लम, अगर इस सरकार को शौक है ऑनलाइन एजुकेशन का सपना पूरे करने का तो वो करे, लेकिन उससे पहले सबके लिए खाना, उससे पहले सबके लिए रोजगार, उससे पहले सबके लिए रहने की व्यवस्था, उससे पहले पानी, खाना, उन तमाम चीजों की व्यवस्था करे सरकार, और वो स्टैंडर्ड दे जिस स्टैंडर्ड पे जाके यू कैन इंट्रोड्यूस ऑनलाइन एजुकेशन। और ऑनलाइन एजुकेशन भी पूरे एजुकेशन सिस्टम का 100% कभी नहीं हो सकता और ना ही कभी होगा। द वे दिस गवर्नमेंट हैज डिस्टॉर्टेड लेबर लॉज, और क्यों किए, बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन, दे डोंट वांट मोर पीपल टू बी इन द प्रोडक्शन सेंटर, ताकि उनको रोजगार से धकेल दिया जाए। द सेम वे दे वांट टू किक आउट पीपल फ्रॉम एजुकेशन सिस्टम, ताकि ऑनलाइन सिस्टम करके जो लोग एजुकेशन ले पाए उनके लिए। वो कुछ लोग हमारे देश में, द बिलियनियर्स एंड मिलेनियर्स आर लाइक दिस, दोज हु कैन हैव देयर पर्सनल ट्यूटर्स एट देयर होम, those who can, like a professor from America who can come and teach them daily. But point is about those 130 करोड़ people जो लोगों ने वोट देके इस देश की सरकार को चुना, जिन लोगों को सरकार ने रोजगार का, एजुकेशन का वादा किया, और उसके बाद जिस तरीके से सरकार ने एक एक करके अटैक किया पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, उससे सरकार का पॉलिसी बहुत क्लियर है। आप ऑनलाइन का बात करिए, आप ऑफलाइन का बात करिए, आप बात करिए कि यूनिवर्सिटी में कैसे एजुकेशन दिया जा सकता है, बेसिकली एजुकेशन देना ही गवर्नमेंट का प्रायोरिटी नहीं रहा, क्योंकि उनके लिए दिस 95% ऑफ पॉपुलेशन का कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसको वो जैसे भी चाहे मैनिपुलेट करने का सोचते हैं। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि फर्स्ट आप उस स्ट्रक्चर को डेवलप करिए, बेसिक स्ट्रक्चर को, जैसे कॉमरेड ने पहले मेंशन किया कि स्कूलों में छतें तक नहीं है, लोग पानी में, बारिश में बैठ के स्टूडेंट को माने वहां पे बैठना पड़ता है, खुद सब कुछ करना पड़ता है। पहले यू मेक इट श्योर कि वहां पे स्कूल हो, एक क्लासरूम हो। इफ यू कांट प्रोवाइड देम अ स्मार्ट क्लास, एटलीस्ट देयर शुड बी अ चॉक एंड अ बोर्ड फर्स्ट। हमने देखा कि देयर आर पीपल हु आर टीचिंग द पीपल फ्रॉम इंडिया, द वेरी लिटिल किड्स, किसी को माने किसी रात को लैंप के नीचे पढ़ाने के लिए कोई दोस्त किसी गरीब बच्चों की क्लास लगा रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से हाईवेज के नीचे, बड़े बड़े ब्रिजेस के नीचे दीवार को चौक बोर्ड बना के वहां पे लिख के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। माने अ कंट्री विच इज नॉट सफिशिएंट इनफ or which hasn't provided like people with basic system of education which is the primary system of education, तो आप उसके बाद ऑनलाइन जो बहुत बाद में आता है, माने डायरेक्ट सर्जरी करने चली है सरकार, बिना कोई ट्रीटमेंट दिए, बिना कुछ देखे कि सीधा ऑपरेशन किया जाएगा। पहले अपने देश का इकोनॉमिक कंडीशन, अपने देश का किस तरीके से लोगों को मरने के लिए छोड़ा जा रहा है, उसको मुझे लगता है सरकार को जरा देख लेना चाहिए, और इसको एक्सेप्ट किसी तरीके से नहीं किया जा सकता। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, दैट क्वेश्चन इज ऑफ सर्वेलेंस। आपने देखा कि किस तरीके से जो JNU के स्टूडेंट साथी लोग जो लड़ रहे थे एजुकेशन को बचाने के लिए, CAA के खिलाफ, कॉमरेड आयशी को सर पे मार के कैमरा पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, और फिर भी बता दिया जाता है कि वो खुद सर पड़वाने का काम किया, और वो सारी चीजें कॉमरेड कन्हैया कुमार का हर चीज ऑन रिकॉर्ड होने के बावजूद भी, सब सबूत होने के बावजूद भी आप डॉक्टर्ड वीडियो के सहारे फेक न्यूज को यूज करके उनको दोषी ठहरा देते हैं। when things are happening, when everything is on record, आप सोचिए कि किस तरीके से 24 घंटे लोगों के ऊपर सर्वेलेंस रखने का मामला जो है सरकार करना चाहती है। So that's why we are opposing that with all these realities which India is having today, वो लोग जिनको बसेस तक नहीं दी जा सकी, वो millions of more than 90 lakh people जो पैदल चल के जा रहे हैं, जिनको माने रास्ते में खाना तक नहीं दिया जा सकता, जिनको शेल्टर नहीं दिया गया, जिसको देश की सरकार ने ये भरोसा तक नहीं दे सकती सरकार कि आप अगर 3 महीने भी आपको रुकना पड़ा तो हम आपको खाना, पानी और रहने की जगह और मेडिसिन देंगे, आप नहीं जाइएगा। वो लोग पैदल चलने के लिए मजबूर हैं because your that haunting slogan is there, stay home and stay safe. Then why don't you allow people to go to their homes, or you provide them homes wherever they are? तो
जब आप वो नहीं कर पाते इस देश में, और तब ये ऑनलाइन का चुटकुला भी एक तरीके का जो सरकार ने जिस तरीके से गेम खेलने का काम किया, दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन के सरकार का नीति है कि जिसकी जेब में, बिकॉज दे हैव टर्न्ड एजुकेशन इनटू इंडस्ट्री, जिसकी देश जेब में पैसा है वो इलाज भी ले ले, और जिसकी जेब में पैसा है वो एजुकेशन भी ले ले। बट फ्रॉम ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, फ्रॉम नेशनल और स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस, from left or from all the student organizations were continuously fighting over this agenda कि सरकार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, जो जीडीपी की हम मांग करते हैं कि एजुकेशन खर्चा होना चाहिए, वो पहले लागू होना चाहिए, और उसके बाद स्मार्ट क्लास की व्यवस्था करने के लिए जब सरकार जाए उससे पहले देखे कि स्मार्ट क्लास लगाने से पहले वो चौक और ब्लैक बोर्ड रिमूव करने अगर करने की सोचे तो दैट शुड बी देयर, वो पहले होना चाहिए तो रिमूव होगा। जब वो नहीं है तो किस क्लास की सरकार वो जो बात करती है। तो हम ये कहते हैं कि क्योंकि लोग उसकी प्रायोरिटी पे नहीं रहे, तो ये जो माने एक तरीके से ये कैंपेन पूरा चलाया जा रहा है कि लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट अभी ये भी सोचता है कि ऑनलाइन भी एजुकेशन हो तो उसमें क्या दिक्कत है। तो हम उन सब साथियों को भी कहना चाहते हैं, दो स्टूडेंट्स हु आर स्टैंडिंग विद दिस वेरी आइडिया के नहीं, जब तक इस देश में फॉर द स्टूडेंट स्टैंडिंग लास्ट इन द रो, जो कि कतार में बिल्कुल पीछे खड़ा है, उसके लिए और जो सबसे पहले खड़ा है, एक साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए ताकि इस देश को इक्वालिटी के लेवल पे आगे बढ़ाया जा सके। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग of the chances or like is there any scope is definitely there, पर अगर लोगों के पास वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, उनके पास रोजगार हो, उनके पास घर हो और सारी चीजें, क्योंकि सरकार ने दिस वेरी गवर्नमेंट जिस फाशिस्ट तरीके से इन्होंने मूव किया हजारों बार इस देश में, ताकि लोग ऑनलाइन आपस में कनेक्ट ना कर पाए, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई मैसेज दूसरे लोगों तक ना पहुंच पाए, देयर आर कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ दिस थिंग के कभी आप इंटरनेट को बंद करते हो, कभी आप मोबाइल सर्विसेज को ठप कर देते हो, माने एक पूरे के पूरे मॉडल को, एजुकेशन को अपने हाथ में लेने के लिए ताकि क्लिक से ऑन ऑफ किया जा सके, दिस गवर्नमेंट इज मूविंग। और हम इस चीज का बिल्कुल सिरे से विरोध करते हैं कि इस देश की रियलिटी के हिसाब से ऑनलाइन सिस्टम को नहीं लागू किया जा सकता। पहले आप लोगों का खाना पीना, उनका बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन वो पूरा करिए, और उसके बाद में इन सब चीजों पे डिस्कशन करने का कोई तरीका बनता है। सो आई कंक्लूड विद दिस। थैंक यू कॉमरेड साकिब। Thank you, Comrade Vicky. Now I invite Comrade Sandeep Saurav from ISA. Comrade Sandeep, please. Comrade Sandeep, can you hear me? Are you there? This is the condition of our online education. Comrade Sandeep? I think we lost him. Comrade Sandeep, let's wait for a few minutes and then see. I think he's trying to log in again. He's logged out and trying to log in again. This is the reality of digital India.
संदीप, अगर वीडियो में कुछ दिक्कत हो रही है तो सिर्फ आप ऑडियो भी यूज कर सकते हैं, ऑडियो से भी चलेगा। Let's hold on for a few minutes and then see. Yeah, it's trying to log in again, I think. Comrade Saqib, Yes, Kamil. Ji. yeah, if it is possible, like we can go for Yes. questions, and Hmm. so that whenever Comrade Sandeep will be there, then Ji. he will be like, I guess he can be allowed to get in Hmm. immediately. Ji, ji. Oh, so I'll just take 2 minutes here to just say that both of you have rightly pointed out the various issues associated with this topic of online education. And just few things. The first thing that is very clear is that this digital mode or online mode cannot obviously replace the traditional pedagogy which we have. I mean, it can be only used in a very limited sense, especially where there is a universal access to things like internet or laptops or computers and things like that, or in a or on a very small scale. So that because of the extended period of lockdown, the semester or curriculum is not missed out. But having said that, it obviously, as both of you have pointed out, it can never be a replacement for the traditional pedagogy. So that is very clear, I think, and that way should carry forward from this talk. The second thing is, as Comrade Vicky has pointed out, that obviously there is also the larger political economy concern. I mean, it's not just the issue of online education per se, or access to, say, laptop or internet connection as such, but also the larger issue or political economy of education in the country, and also the role played by the government, particularly the central government, and the political ideology, economic ideology with which it is currently operating. So all those things, the larger infrastructure and access, all those things come into the picture. And thirdly and lastly, I would just say that if we see the uh, the way in education institutes, or say MHR or the UGC or the ministry MHRD have behaved, I don't think anybody has even bothered to first check that, say, in a particular education institute, if there is a universal access to, say, internet or laptop or mobile phones, before coming out with a policy prescription. For example, the UGC, last month, you might be knowing that UGC had constituted an expert committee in April, I think, not last month, April 20th April. So, but I don't think any educational institution first even bothered to see whether students in a campus or, say, university have how many percentage, what percentage of students have first access to all this internet or, say, online mode, and then whether we should go ahead with internet or online mode of education or things like that. So should we go ahead with question answers now?
Yes, yes, you can. Yes. Yeah. So the first question is, it's asked that what if government distributes laptops and mobiles? It says there's only in 2G internet in Kashmir, and how would they study online? So should I take a couple of questions and then we can Yeah, yeah, decide? you that will be better. Okay. That will be better. So the first question is regarding what it says: what if government distributes laptops and mobiles? There's only 2G internet in Kashmir. How would students study online? The second question is, it says that given the current pandemic and loss of employment, there's high chance that large number of students will drop out from schools and colleges, particularly girls and women. So are your organizations doing something specifically in this regard? Uh, Especially when the choice comes between bread, butter, or education? That is the second question, this choice between bread, butter, or education. And third question is, in the Atmanirbhar Bharat package of Modi, nothing is mentioned about aid to students. So what actions are your organizations going to take to ensure that the students get all the help? So let's start with these first three questions. Okay. May I or Vicky? Vicky, आप Sh- कहेंगे? Continue. Sure, sure. I'll add on. Anyone of you can take it. अच्छा. As I mentioned earlier, that on 20th of May, we launched an All India cases campaign from All India Forum to say public education, and specifically we took these demands. Our demands were, for example, there must not be online education evaluation and academic procedure. There must be a common academic calendar. Government must embed a fellowship and provide financial help to each and every student. And of course, for their they have to, when there will be an examination, they have to we have the government have to take some steps. For example, the steps like safe and security of the students. It must be, I mean, this, first of all, they will finish, I mean, all the institution must finish their, this syllabus, and then they will arrange transportation for this examination hall. After then, they can organize some education. This examination. At the same time, we also, when there is a question related with dropout, we also raise this issue that government should provide, this midday meal to each and every student. They must not be discriminated between APL and BPL. So we have to provide midday meal to all, and it is possible actually. As I mentioned again, what I'm saying that still there is this almost 7 crore 70 lakhs food grain rotting in our SCI go down. So government can easily distribute this ration that for now, and now it will directly there will be an impact on our this dropout rate. It will decrease the dropout rate, but at the same time we also observe in this present time that now it is already started, especially I mean, from a case study, you can say that day before yesterday, we are in busy in relief work in the some remotest part of Bengal. It was also affected by the Amphan super cyclone. There also we observed that how this migration is to happen again, because they are not. Yeah, they are not having any ration. They are not any livelihood facilities in the rural areas. So again, they are going back to their this from other states also. So it will happen, and even the students and young students they are doing. And the question is arising. We also observe that this trafficking also increasing in some areas. So what we are doing now, we have given from our organization, and not only our organization, unitedly, ASFI, AISF, DYFI, AIF, YF, every student and youth organization, we are giving deputation to in front of BDO office, give this deputation, and the students, and not only us, we are maintaining this physical distancing, and this according to follow the this rules and regulation of ICMR and WHO.
we organized some protests there in front of BDO office, even in some schools also. In some schools, they are now increasing their fees like anything. In this situation, again, one after another day, this protest is going on. And I think Vicky, in the first question, it's laptop, and when in the question of Kashmir, the Vicky rightly pointed out that first thing is without you are giving lab, I mean, without any plan, actually, government don't have, they have the different priorities. Their priorities is focused on the PM funds, which is only concentrated, they're focused on this election on, where they're not thinking anything about this education system. And that is why what this, I mean, this providing some laptops or mobile, it will not enough. First, provide this basic security, basic livelihood. सब कुर्सियां नीचे का मंगवा लिए हो All these options they must give. Then there will be, जैसा भिकी ने बोला, जैसे सबके लिए खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, फिर ये बंदोबस्त हो सकता है। अगर यूनिवर्सल सुविधा मिलेगा, तभी डिजिटल इक्विपमेंट हम लोग ये बात आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग। नहीं तो ये एक हवा में माहौल बनाना होगा और कुछ भी नहीं होगा, ये हम लोग सोचते हैं। Comrade Vicky, sorry to interrupt you. Can we have Sandeep, Comrade Sandeep or Saurabh to go ahead, and then maybe all of you can take another round of questions. Comrade Sandeep, please. आप ऑडियो से जी आवाज आ रही है मेरी अभी? जी बिल्कुल आ रही है। जी 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 हाँ, प्लीज क्योंकि इंटरनेट तो बहुत ही खराब है। हाँ जी जी ये तो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और देख रहे हैं कि हम लोग क्या इंटरनेट का स्थिति देश में है। मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे इंटरनेट की स्थिति बहुत ही खराब है। तो खैर ये 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, और देश में कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज ये सारे बंद हैं, और इसकी वजह से ये पूरा लॉकडाउन जो चला, इसकी वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। कॉमरेड मयूख ने इस पे बहुत डिटेल से बात रखा, और इसी एक तबाही में एक एंगल जुड़ा हुआ है कि इस समय देश के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो एकेडमिक गतिविधि है वो सब रुक गया है, वो सब ठहर गया है। उनकी क्लासेस, उनका लैब, उनका एग्जामिनेशन, ये सब रुका हुआ है। और ऐसे में एक अल्टरनेटिव मोड की तरफ सरकार इशारा कर रही है। यूनिवर्सिटीज जानबूझ करके इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है कि हमें ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाना है। तो एक तो गवर्नमेंट अगर ऐसा बात कह रही है कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़ना होगा, तो ये तो खुद ही हैरत वाली बात है, क्योंकि जो वर्तमान जो सरकार है, मोदी सरकार, इसका अगर पूरा रवैया देखे पिछले 6 साल में, तो एजुकेशन को पूरी तरीके से दुश्मन की तरह ट्रीट किया है सरकार ने, और यूनिवर्सिटीज या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वार जोन की तरह ट्रीट कर रही है सरकार। आज का ही अगर देखें, एक आज जो दिल्ली पुलिस ने जो अपना चार्जशीट दाखिल किया दिल्ली दंगों को लेकर के, उसमें दंगा भड़काने में जो मेन लोग थे, कपिल मिश्रा और बाकी लोग, उन लोगों का जिक्र तक नहीं है, उनका नाम नहीं है, जबकि जामिया स्टूडेंट्स को इसमें मेन कारण बताया गया है। इवन जो उसमें ये डेट बताया गया है कि कब क्या क्या हुआ दिल्ली दंगों के समय में, तो उसमें जेएनयू में जो अटैक हुआ, बाहर से जिस तरीके से ऑर्गेनाइज अटैक हुए, उसका भी जिक्र नहीं है। तो सरकार तो बहुत पहले से ही ये चाह रही थी कि यूनिवर्सिटीज बंद हो, एजुकेशन कम हो, कमजोर हो जाए, रिसर्च ना हो, क्योंकि आरएसएस का जो पॉलिटिक्स है उसमें एजुकेशन, रिसर्च, इस तरह की चीजों का गुंजाइश नहीं है। अंधविश्वास ही उनके लिए सबसे मेन चीज है। अब जब सरकार ये कह रही है कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़ना होगा, तो देखने वाली बात है कि इसमें तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ अगर हम लोग बात करें तो। एक तो है कि स्मार्टफोन या लैपटॉप आपको चाहिए, और दूसरा आपको स्पीड इंटरनेट चाहिए। ये दोनों चीज आपको चाहिए होता है। और जो भारत की स्थिति है, जो हमारा संकट है इस समय, अगर देखा जाए तो जो टॉप 50 देश हैं दुनिया भर में स्मार्टफोन यूज करने वाले लोग जो देश हैं, उसमें भारत का जो स्थान है वो 40 नंबर पे है, 40वां नंबर पे है। और हमारे देश में ये सरकारी आंकड़ा है 27% लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। 2018 के लास्ट का ये डेटा है। सिर्फ 27% लोग हमारे पास, 27.7% लोग हमारे यहाँ इंटरनेट स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। और इंटरनेट यूजर्स के मामले में भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा स्थिति नहीं है।
2018 में सरकार ने कहा कि हमारे देश में 41% लोग 41% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और सरकार का टारगेट था कि 2023 तक 2023 तक हम इसको बढ़ा करके 50% तक ले जाएंगे। और इसमें भी जो ग्रामीण इलाके हैं वहां की स्थिति बहुत खराब है, ये बहुत स्वाभाविक है। वहां पे इंटरनेट की स्थिति खराब है, महिलाओं का जो उसमें हस्तक्षेप है इंटरनेट का इस्तेमाल करने में या स्मार्टफोन को इस्तेमाल करने में, वो भी बहुत कम है। हेलो, तो हेलो, मोहित बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये इसमें एक 40% जो उपभोक्ता हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका ये शिकायत है सरकार, ये जो इंटरनेट की कंपनियां हैं उनके पास जो शिकायत दर्ज है उसमें 40% लोगों का कंप्लेन है कि हमारे यहाँ नेट की स्थिति अच्छी नहीं चल रही, हमारा नेट सही से नहीं चल रहा है। और 56% लोगों का कंप्लेन होता है कि हमारे यहाँ बहुत वीक सिग्नल है। तो ऐसे में अगर हिंदुस्तान में कोई सरकार ये बात कहे कि हम एक अल्टरनेटिव मोड की तरफ बढ़ेंगे, एजुकेशन को लेकर के ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं या ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेंगे, तो ये बहुत हास्यास्पद है। ये इससे एक बड़ा मजाक इस समय इस देश में, जहाँ पे इतना खराब कंडीशन इंटरनेट की है, और जुमलों में भले ही मोदी जी कह दिए हों कि डिजिटल इंडिया की तरफ हम लोग बढ़ रहे हों, लेकिन उसका दूर दूर तक वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। एक इंटरनेट स्पीड को लेकर के ग्लोबल जो डेटा है, ग्लोबल जो इंडेक्स बना हुआ है, उसमें 141 जो देश जिसका डेटा इस्तेमाल किया जा सकता था, उसमें भारत का स्थान जो है वो 128 पे है। 141 देशों की सूची में भारत 128वें नंबर पे है। और कहने का मतलब ये है कि जिस देश में स्मार्टफोन का उपलब्धता इतना कम हो, इंटरनेट का स्पीड इतना कम हो, डाउनलोड करने या अपलोड करने का स्पीड इतना कम हो, वहां पे ऑनलाइन मेथड कोई मेथड हो ही नहीं सकता है। तो पहले तो सरकार की मंशा पे हमें शक है कि वो चाहती क्या है। और इसलिए जब हमने देखा कि अभी 1 महीने पहले जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अचानक से अनाउंस कर दिया कि हमारे यहाँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिए जाएंगे, ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा, तो बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, वहाँ का टीचर एसोसिएशन, वहाँ का स्टूडेंट्स के बड़े हिस्से ने उसका विरोध किया। और जो सर्वे हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें 85% स्टूडेंट्स ने कहा कि हम इस ऑनलाइन एजुकेशन के खिलाफ, इस ऑनलाइन एग्जाम के खिलाफ हैं। तो एक तो बहुत साफ बात है कि इस तरह का अगर कोई भी प्रोसेस सरकार अपनाती है तो ये डिस्क्रिमिनेटरी होगा, ये भेदभाव करने वाला होगा, और एक बड़े तबके को इस पूरे प्रोसेस से बाहर धकेलने वाला होगा। ऑनलाइन क्लासेस एक बात है, लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशन की अगर जब बात करेंगे, क्योंकि अब सब जगह पे मामला ऑनलाइन एजुकेशन तक पहुंच चुका है। क्लासेस जो चलनी थी वो चली, लेकिन अब मामला पहुंच चुका है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। और हम लोगों को लगातार ही हमारा जो आईसा का सेंट्रल जो ईमेल है उस पर लगातार ही देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट कॉलेजेस से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से लगातार स्टूडेंट्स के मेल आ रहे हैं कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है वो जबरदस्ती हम लोगों पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन थोप रहा है, और इसलिए आप लोग कुछ इस मामले में कीजिए। तो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन जब सरकार लेने की कोशिश करेगी, तो ये आप मान के चलिए कि ये बड़े संख्या में स्टूडेंट्स को बाहर धकेलने वाला होगा। जैसे एग्जांपल आप लीजिए कि अभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्थिति है, वहां पे तकरीबन 3 लाख स्टूडेंट्स वहां पे रजिस्टर्ड होते हैं, और उसमें से जो स्टूडेंट्स लॉकडाउन से पहले या उसके बाद अभी कश्मीर में चले गए होंगे, जहां पे हम देख रहे हैं कि 5 अगस्त के बाद से ही वहां पे 4G इंटरनेट नहीं है, तो उन सारे स्टूडेंट्स को आप कैसे एक्सक्लूड कर देंगे? आप ऐसे एक पॉलिसी बनाएंगे, ऐसा एक मेथड लेकर के आएंगे जिसमें आप एक बड़े तबके को बाहर ही धकेल देंगे? या जो लोग गांव देहात में हैं, मैं अभी खुद गांव में हूँ, गांव में फंसा हुआ था एक जगह पे, तो वहां पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इंटरनेट जैसा बहुत चीजें बहुत मुश्किल हैं। तो आप उन सारे स्टूडेंट्स को जो रूरल एरिया से आते हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जो अपने गांव पे हैं या अपने घर पे हैं, उन सारे लोगों को आप तो बाहर धकेल देंगे इस पूरे प्रोसेस से। और ये एक तरह का बर्डन स्टूडेंट्स अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों देखा कि एक केरल में एक जो दलित छात्रा थी, 9th स्टैंडर्ड की थी, देविका, उसने सुसाइड कर लिया। तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है स्टूडेंट्स के ऊपर कि उनको ऑनलाइन क्लासेस या
ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ धकेला जाए, और इसलिए इसके खिलाफ हम लोग हैं। एक इसमें इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि सिलेबस पूरा नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज का सिलेबस पूरा नहीं है। जब लॉकडाउन हुआ, आप समझिए कि होली के तकरीबन आसपास हम देख रहे थे कि देश में एक माहौल बनने लगा था कोरोना का, और उस समय से ही यूनिवर्सिटी क्लासेस कम स्पीड उसकी हो गई थी और धीरे धीरे सभी क्लासेस बंद ही हो गई। तो उस समय से लेकर के अब तक कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस को छोड़ दे जहां पे ऑनलाइन क्लासेस चली हैं और वहां पे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे आप टीचर्स का सुने, जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं उन लोगों से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे थे उस समय स्टूडेंट का जो अटेंडेंस होना चाहिए था वो आधे से भी कम था। जनरली आधे से भी कम स्टूडेंट्स जो है उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए तो सिलेबस वहीं ठहर गया है जहां पे क्लासेस रुक गई थी। अब जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन में उनको धकेलेंगे तो वो तो बाहर धकेल दिए जाएंगे पूरे प्रोसेस से। और छात्रों को कोई लिंक शेयर कर देना, अगर कोई टीचर लिंक शेयर कर देता है किसी भी चीज का, तो वो कोई टीचिंग नहीं है। मुझे कोई किसी ने लिंक भेज दिया और बोला इसको पढ़ लीजिए, तो ये कोई टीचिंग तो नहीं हुआ। और जो ऑनलाइन किताबें हैं, अब पूरी दुनिया में जो किताबें अवेलेबल हैं उसमें सिर्फ 1%, सिर्फ 1% किताबें ऐसी हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स अलग अलग जगह पे फंसे हुए हैं। अब आप उनसे कहेंगे कि आपको देना है एग्जाम या क्लासेस करनी है, तो ये बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले सीबीएसई ने अनाउंस किया कि जुलाई में वो ऑफलाइन एग्जाम यानी पेन पेपर वाला एग्जाम वो लेंगे। तो जब सीबीएसई ये बात कह सकता है कि हम पेन पेपर एग्जामिनेशन लेंगे, तो ये बाकी जगह भी हो सकता है जहां पे एग्जाम को लेकर जा रहा है, या जो बड़ी मांग हम लोग उठा रहे हैं, जो बाकी सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अभी एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है, जब देश इतने बड़े क्राइसिस में है और पूरे समझिए कि पूरे इतिहास में, मानव सभ्यता के इतिहास में इतना बड़ा क्राइसिस शायद महसूस नहीं किया होगा लोगों ने। तो वैसे समय में ऑनलाइन एग्जामिनेशन और ऑनलाइन क्लासेस को छोड़ करके स्टूडेंट्स को सीधे प्रमोट किया जाए, और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका एक संकट आ रहा है, उनको भी प्रमोट कीजिए आप। और अगर इस बात पे सहमति बनती है कि हम एग्जामिनेशन नहीं लेंगे बल्कि स्टूडेंट्स को प्रमोट करेंगे, तब कैसे प्रमोट करना है, किस ईयर के स्टूडेंट्स को कैसे प्रमोट करना है और इवेल्युएशन का क्या तरीका होगा, इस पे बैठ करके ठीक तरीके से बात हो सकती है, इसमें स्टूडेंट्स का कंसर्न लिया जाए। लेकिन ये एक तरफा आप पॉलिसी धकेल करके स्टूडेंट्स को, ये बहुत मुश्किल होने जा रहा है। और ये तो बीजेपी सरकार की बहुत पहले से पॉलिसी है। बीजेपी सरकार ने इससे पहले भी कोशिश किया था, बल्कि बीजेपी से भी पहले अगर हम देखें तो 2013-14 के आसपास हम लोगों को याद है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक तरह का प्रस्ताव आया था कि हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई लिखाई का तरीका है उसको डिजिटाइज करेंगे, यानी एक टीचर एक फैकल्टी जो होगा वो किसी एक जगह से बैठ करके क्लास लेगा और प्रोजेक्टर से सारे ही कॉलेज में उसको हम लोग स्टूडेंट्स को दिखाएंगे। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में जो एक गर्माहट भरा संबंध होता है, जो डायलॉग का चीज होता है, या एजुकेशन में जो जिसका जो इम्पोर्टेंट चीज होता है उसको खत्म करके टीचिंग पोस्ट को धीरे धीरे खत्म कर देने का एक पूरा प्लान दिल्ली यूनिवर्सिटी का था। स्टार्टिंग में इसका बहुत ज्यादा विरोध स्टूडेंट्स ने किया और इसका इतना हैतोबा मचा कि उस समय हालांकि शायद कांग्रेस की सरकार थी तो सरकार इस पे बैकफुट पे चली गई। लेकिन ये एजेंडा जो है गवर्नमेंट का, ये आज बना हुआ है और ये आने वाले समय में सरकार की योजना है कि हम पढ़ाई लिखाई को खत्म करके, यूनिवर्सिटीज को बंद करके, जो स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल हैं, उसको मर्ज करके पढ़ाई लिखाई को ऑनलाइन सिस्टम कर दें। और दसियों बार हम लोगों ने देखा कि अलग अलग समय पे बीजेपी सरकार जो पॉलिसी लेकर के आई, उस पॉलिसी का एक ही मकसद था कि जो
पिछड़े तबके के स्टूडेंट्स हैं, जो रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, जो सोशली डिप्राइव्ड सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं, से एजुकेशन में और खास करके हायर एजुकेशन में उनको आगे नहीं बढ़ने देना है। तो ये सरकार की लंबी पॉलिसी के तहत बना हुआ एक प्लान है, उसका एक जुमला है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। और इसलिए हमें लगता है कि ये एकदम सही मौका है जब हम लोगों को ऑनलाइन एग्जामिनेशन का और ऑनलाइन क्लासेस का एक पॉलिसी के बतौर विरोध करना चाहिए। और इसमें हम लोग आने वाले समय में निश्चित तौर से और एक धक्का और लड़ाई हम लोग करेंगे, क्योंकि ये अब समय आने जा रहा है जब सब जगह पे एग्जामिनेशन का माहौल बन रहा है और स्टूडेंट्स के बीच में एक तरह का पैनिक क्रिएट हो रहा है, कब क्या होगा। तो बहुत लंबा नहीं आगे बातचीत होगी। तो हम लोग फिलहाल यही चाहते हैं कि इस पे इसको बंद किया जाए और हम लोग मिलजुल के सारे लेफ्ट संगठन और जो भी डेमोक्रेटिक संगठन हैं वो स्टूडेंट्स के कंसर्न को सुने और इसके साथ खड़े होते हुए हम लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन का विरोध करें। शुक्रिया। Thank you, Comrade Sandeep. Now we'll take another set of question and answers. Since Comrade Mayuk has to leave, I'll direct set of first initial questions to Comrade Mayuk. So, Comrade Mayuk, one of the questions I think addressed to you is regarding the unfortunate death, rather the suicide of a student in Kerala recently. So if you could analyze this, this unfortunate incident and the, role of the state government and, things like that. Thank you. You will have to unmute yourself. It's mute. Please unmute yourself. Yes. Yeah. So it's very unfortunate. Every date is very unfortunate, and this is such date of a small child is very unfortunate, undoubtedly. And as you know, our position is very clear. What we have said, that digital education can never be the replacement of the physical education. Even this must only be utilized only where there is universal access to digital equipment by all students in the concerned areas. And this same thing, it was uttered by, the only left chief minister in our country, Comrade Pinarayi Vijayan. He said very clearly. As you know, the condition of Kerala is something different from other parts of our country. Kerala situation, so all the indicators are very high in respect with other parts of our country. And while we are talking about this digital equipment and universal access to digital equipment, Kerala still now it's a far ahead. That now, after this incident, that we have took a challenge. The challenge is like TV challenge. There is something there is a question from this regarding Kashmir. In Kashmir, there is still now they're providing 2G facilities. The thing is not same in Kerala. Kerala's education department has done a survey, and according to that education department, out of 41 lakh students in public school of Kerala, there are 2.6 lakh students who don't have online facilities. So now, of course, in this situation, in this pandemic situation, the Kerala government, as you know, this pandemic situation is much better than other parts of our country. So government took some initiatives there to overcome this problem, to continue this academic session there. Again and again, I just want to mention again that Kerala's Chief Minister and our organization also, SFI, we said repeatedly that digital education can never be the replacement. But in this situation, pandemic situation, we took some methods. For example, the Kerala government, yes, government, there is a government-owned TV channel also, Victors. Its name is Victors. So it has started this class through this television, and this class is that the classes also all the classes will upload on YouTube and Facebook also.
And this is not the, I mean, this is not the general method and all this thing, because we have to remember, and we also I mean, we all know that this online education is nothing but the policy of WTO and GATT, and that is why the same policy the central government is trying to implement. But now in this situation again, I mean, it is not general sensitive situation in Kerala. Because of this pandemic situation, we took this challenge. The challenge is for now, for the first 2 weeks, it will constitute a trial run. This, I mean, this through this education, through this, I mean, this television, and it will be telecast. It will again and again in these channels, on TV channels, and again it will it target also this organized. I mean, this government also formed some neighborhood study center, and our organization SFI ISF is there. We are also helping to form this neighborhood study center. And now those students, and we believe that, and we are targeting that no student is going to miss. So that is why our organization took a TV challenge. Some TV challenges means that we are collecting money, and some renowned persons, many well-wishers, they are donating TV and handed over to the families in need. And that is why in our comrades, for example, from the Mallapuram to Thrissur to Kochi, Palakkad, everywhere, our comrades are passing jungle and working day and night to provide those TV to the community or to that family. And that is why, for with this method, we are trying to overcome this crisis. And that is something alternative. But what is happening, the girl is very unfortunate, undoubtedly, I think, and that is why we don't want this thing happen again. And there must, and we are also trying to do this, all these facilities, because of, again and again, this Kerala is an example, and example is like that. That is why we are trying some alternate methods to generalize, universalize this education system. And in this pandemic situation, we are trying our best to do so. That is all about. Thank you, Comrade Mayuk. Comrades Vicky and Comrade Sandeep. The next, Sakib, yes, Sakib, Comrade. with your permission, and my colleagues are there. I mean, Comrade Vicky is there, Comrade Hurav is there. With their permission, I have to leave right now because we have some different program. That is why I just want your permission. Sure, please Okay, go ahead. Thank you. Thank you. Yes, comrades, one of the next question is, what are the key initiatives taken by the left student organizations to fight against the digital divide agenda in the education system? And the next question is regarding the situation where we have education from home and the gender roles associated with it, especially with regard to women students and teachers who also have to work at home and also take care of the education. So what can be done regarding this? I think that's the question. I'll take one more question. I'll direct it to you. The third one is, do we need right to online education and public policy on it? So please go ahead. Should I? Yes, Comrade Vicky, please. कॉमरेड, एक तो ये जितने सवाल हैं, these all questions are interlinked in a sense कि किसी भी सवाल को इंडिविजुअली मुझे लगता है नहीं उस तरीके से किया जा सकता, because these all questions are related to the system that we all are living in. So now, because of this pandemic, it's quite clear with everybody that this is the time when we can't carry on, or we can't continue with the system, this capitalist system. क्योंकि जब आप कैपिटलिस्ट सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, जिसका एक के बाद ये एक आगे बढ़ने का काम, जिस सिस्टम को आगे बढ़ाने का काम हमारी इस देश की बीजेपी की सरकार लगातार कर रही है, और जिसकी वजह से ही नाउ वी हैव कम टू अ डिस्कशन के एजुकेशन किन के लिए माने सिमट कर रह गई इस सब के चलते हुए,
So this question has to be addressed from that point of view. So in the very first, I want to link my answer with the very first question that you asked, कि मोदी जी इतनी सारी मतलब घोषणाएं करते हैं और वह सारी चीजें, एंड हाउ यू फाइंड ऑल दीज थिंग्स प्रैक्टिकल. एक तो दिस इज वेरी क्लियर दैट आवर प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स अ लॉट बट ही सेज नथिंग. वी हैव कम टू दैट कंक्लूजन, क्योंकि आप जितना भी सुनते रहिए, ऑल दीज अनाउंसमेंट्स दैट दे मेक फाइनली लीव यू लाइक किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचाती, बिकॉज दोज थिंग्स आर नॉट प्रैक्टिकल और रिलेटेड विद द ग्राउंड रियलिटी ऑफ ये है कि क्या जो स्टेप्स हैं लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस और अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके लिए लिए. एक तो मुझे लगता है कि आज के समय में सबसे बड़ी जो चीज इस देश के स्टूडेंट्स को याद रखनी चाहिए वो ये है कि वी प्रूव्ड इन ऑल दी 6 years ऑफ बीजेपी रूल कि इस देश में अगर इस देश का कोई रियल ऑपोजिशन है तो वो इस देश के स्टूडेंट्स हैं. और एक एक इंच जमीन इस देश की, दिल्ली का एक एक कोना इस बात की, इस देश की कैपिटल है जो राजधानी है, वो इस बात की गवाही देती है कि स्टूडेंट्स आर have proved themselves to be the real opposition to this government. और इसी की वजह से है कि एजुकेशन पे सरकार बार बार हमला करने का काम करती है. और उनको बहुत अच्छे से रियलाइज हो चुका है कि अगर स्टूडेंट्स को मिलने ना दिया जाए, और बिकॉज दिस ऑनलाइन एजुकेशन मेक्स यू सेपरेट ऑल्सो, अगर मिलने ना दिया जाए और दे डोंट कम टू अ डिस्कशन कॉर्नर और अ यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम टू कीप देम सोशली डिस्टेंट, विच शुड बी के जैसे हम लोगों ने क्या देखा कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को सोशल डिस्टेंसिंग का नाम दे दिया गया, लेकिन जो होना चाहिए था दैट इज ऑल अबाउट सोशल टुगेदरनेस. नहीं तो आप पेंडेमिक के खिलाफ नहीं लड़ सकते एज अ कंट्री. सो ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस वी आर ट्राइंग के लोगों में, स्टूडेंट्स में ये अवेयरनेस जाना चाहिए, और खास तौर पे उन स्टूडेंट्स में, क्योंकि जो गरीब स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है, जब वो वापस गया, चाहे वो पैदल चल के गया, चाहे वो लॉकडाउन से पहले गया, क्या कैन यू इमेजिन कि अगर वो आपका यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड है तो दैट मीन्स कि वो घर पे बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन ले सकता है. उसके माँ बाप के लिए खाने का व्यवस्था कहाँ से होगा, उसके घर में दवाई का व्यवस्था कहाँ से होगा. दैट इज द प्रायोरिटी दैट पीपल आर लाइक टेकिंग फर्स्ट. तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक तो अवेयरनेस जनरेट करने के लिए देयर आर सो मेनी ऑनलाइन कैंपेन्स, जो ट्विटर पे भी हुआ और जो फेसबुक पे भी चल रहा है, हर तरीके से. लेकिन इज दिस इनफ? आई विल से नो, दिस इज नॉट इनफ. हम सब लोगों को फिर से इस मुद्दे पे कि अगर सरकार अल्टरनेटिव पॉलिसी के तौर पे एजुकेशन ढांचे को डिस्ट्रॉय करना चाहती है तो विल हैव टू मेक इट मोर फास्टर. क्या आप इसको डिनाई कर सकते हो कि पूरे देश में कल को इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी जाए, एंड व्हाट विल हैपन टू द पीपल, बिकॉज इट हैपेंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि कहीं पे भी कोई अपसर्ज होता है किसी मूवमेंट का तो देन दे गो फॉर इंटरनेट को बंद करने का. और फिर हमारे देश में तो आपको पता है कि किस तरीके से चलती है. नंबर 1 तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जिसके पास एजुकेशन अफोर्ड करने का अगर कुछ मोड है भी, दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट वी आर फाइटिंग फॉर अ कॉमन डिमांड के सब एजुकेशन फॉर ऑल. और जब हम फॉर ऑल की बात करते हैं तो तभी इसमें जीतने की जो गारंटी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. द क्वेश्चन अबाउट जेंडर, द क्वेश्चन अबाउट जेंडर, कि जब घर पे रह के ये काम भी करने का और एजुकेशन का भी, वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस एजेंडा कि ये ऑनलाइन एजुकेशन का काम इस देश में हो ही नहीं सकता विद ऑल दीज प्रेजेंट रियलिटीज. सो ये जो जितनी समस्याओं के खिलाफ पूरे का पूरा तबका अलग अलग तरीके से हम अलग अलग क्वेश्चन पे लड़ रहे हैं इस देश में, और ये क्वेश्चन और ज्यादा बर्डन बनेंगे बिकॉज द सिस्टम इज कोलैप्सिंग. क्योंकि वो सिस्टम जो वर्क फ्रॉम होम का नारा और फिर एजुकेशन भी घर पे रहने का नारा और फिर विद ऑल दीज थिंग्स, ये इसको इस तरीके से चलाया ही नहीं जा सकता. इसको इस सिस्टम को बदलने की लड़ाई के खिलाफ, जो सिस्टम फेल हो चुका है कि एजुकेशन दे,
जो सिस्टम फेल है कि किसी को रोजगार दे। और फाइनली आई एम सेइंग कि जो सिस्टम फेल है, जो ये भी नहीं लोगों को इंश्योर कर सकता है कि एक अगर पेंडेमिक का सिचुएशन आ भी जाए, हिस्ट्री में हुआ ऐसा और आगे भी वी कांट डिनाई कि कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है, तो व्हाट विल यू डू? विल यू लॉक डाउन पीपल बिना खाने के पानी के? नहीं, सरकार के पास 6 महीने का अनाज रहता है ताकि वो लोगों को दे सके। क्या नहीं दिया जा सकता था? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम कि उनका ही पैदा किया हुआ अनाज पेंडेमिक में उनको ही नहीं दिया गया। द सेम फ्रेम ऑफ थिंकिंग इज एप्लीकेबल टू द क्वेश्चन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एंड फिर सब लोगों पे ये उसी तरीके से अटैक बनता है। तो फाइनली आई विल कंक्लूड ऑल दीज क्वेश्चंस बाय सेइंग कि दिस इज द टाइम कि हम लोग चाहे किसी भी तरीके से लिख के एक दूसरे को ऑनलाइन तरीके से भी अगर जितना भी पॉसिबल हो पाता है अवेयरनेस भी जनरेट करें। और फाइनली लॉकडाउन तो खुलना होगा, सारी चीजें माने कंसंट्रेशन कैंप की तरह आप बंद करके तो रख नहीं सकते। अगर इकोनॉमी को, देश को चलाना है तो इसकी रियलिटी को भी फेस करना पड़ेगा। एंड फाइनली वी विल कम टू दैट ग्राउंड कि हम लोग आगे की और डिस्कशन के लिए भी सोच पाएंगे। साकिब। थैंक यू कॉमरेड विकी। कॉमरेड संदीप, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं या और पॉइंट रखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जी प्लीज गो अहेड। जी ये जब डिजिटल डिवाइड की पॉलिसी सरकार की तरफ से आई और जब हम लोगों ने देखी यूनिवर्सिटीज में न सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस बल्कि एग्जामिनेशन का अनाउंसमेंट हुआ, खास करके डीयू के संदर्भ में अगर हम बात करें, सबसे पहले डीयू ने ही अनाउंस किया। तो उस समय हम लोगों ने एक लंबा कैंपेन हम लोगों ने लिया और आप समझिए कि एकदम स्टार्टिंग फेज में अगर बात करें तो उसका एक बड़ा विरोधी स्टूडेंट लोगों का ये मोबाइल हो, इंटरनेट है, ये वो। तो ये जो कॉमन सेंस को तोड़ने का काम तोड़ने में एक तरह का हम लोगों ने किया और डूटा सारे मेंबर से बात करके और फिर टीचर और स्टूडेंट्स का एक बड़ा प्रोटेस्ट हम लोगों ने भी किया गया इसको लेकर के कि ये जो डिजिटल डिवाइड है, स्टूडेंट्स के को एक्सक्लूड करने का जो पॉलिसी सरकार ले रही है, इसके खिलाफ सबको इकट्ठा होना चाहिए। और ये लंबा कैंपेन का ही नतीजा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब सर्वे हुआ और वो स्टूडेंट्स ने नहीं करवाया, हम लोगों ने वो सर्वे नहीं करवाया, वो जो सेंट्रली सर्वे हुआ उसमें 85% स्टूडेंट्स ने नो के फेवर में वोट किया कि हमें ये जो ऑनलाइन एग्जाम या ओपन बुक एग्जामिनेशन की जो घोषणा हुई है उसमें और हम लोग इसमें नहीं जाएंगे। हमारी शुरुआत से ही मांग थी, ये जब लॉकडाउन शुरू हुआ और हम देख रहे थे कि सारे अलग अलग जगह पे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, उनकी क्लासेस तो हालांकि 1 महीने पहले से ही बंद थी और स्टूडेंट्स अलग अलग जगह पे फंसे हुए थे। तब हम लोगों ने गवर्नमेंट से एक प्लान की मांग की, हम लोगों ने स्टूडेंट एक्शन प्लान का डिमांड किया कि सरकार को ये अनाउंस करना चाहिए कि उन स्टूडेंट एक्शन प्लान क्या होगा। और ये सोशल मीडिया में बड़ा कैंपेन चला, एक समय में इसको ट्विटर पे हम लोग ट्रेंड भी करा पाए। अलग अलग संगठन से हम लोगों ने इसमें मदद ली और हमारी सीधी इसमें मांग यही थी, जो स्टूडेंट्स जहाँ जहाँ फंसे हुए अलग जगह में, अगर वो अपना प्रॉपर चेकअप के बाद अपने घर पे लौटना चाहते हैं तो सरकार उसकी जिम्मेदारी ले और उनको लौटा है। दूसरी हमारी डिमांड में कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका रूम रेंट जो है वो माफ सरकार है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उसकी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट को इमीडिएटली लेनी चाहिए और जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट हैं वो अपने स्टेट सारी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स का जारी लें और जो उनका पैसा सरकार की तरफ से दिया जाए। ये हमारी एक इम्पोर्टेंट मांग थी। स्टूडेंट लोन जो है वो हम लंबे समय से देख रहे हैं। ये हम लोगों ने जब लास्ट ईयर हम लोगों ने एक यंग इंडिया अधिकार मार्च निकाला था दिल्ली में, लाल किला से संसद मार्ग तक, एक बड़ा सफल एक अभियान था पिछले लोकसभा चुनाव से पहले। उसमें हमारी ये मांग थी कि जो स्टूडेंट हैं उसको माफ करने का, डिमांड उठाने का ये समय आ चुका है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हायर एजुकेशन में जाने के लिए लोन के अलावा कोई रास्ता नहीं सरकार ने छोड़ा है। क्योंकि एजुकेशन को, रिसर्च को इतना महंगा कर दिया गया है, खास करके जो टेक्नोलॉजी वाले कोर्सेज हैं उसको इतना महंगा कर दिया गया है कि स्टूडेंट्स को लोन लेना पड़ रहा है। और एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स का कोई भी जॉब की गारंटी नहीं है। एक जगह पे पढ़ा था कि जो आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं
जो जिन्होंने अपना बीटेक आईआईटी से कंप्लीट किया है उसमें 70% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं आज के डेट में। तो ऐसे सारे स्टूडेंट जो बीटेक बीबीए या इस तरह के कोर्सेज कर रहे हैं एजुकेशन लोन लेकर के, उन सारे लोगों का लोन जो है वो माफ करे, क्योंकि एक साल के अंदर अगर इस देश में स्टूडेंट्स के बीच में, यूथ के बीच में अगर 26,000 लोगों ने सुसाइड किया, और आप शायद जानते होंगे कि अब किसानों से ज्यादा आत्महत्याएं जो है स्टूडेंट्स की हो रही हैं, यूथ की हो रही है। तो बेरोजगारी एक बड़ा संकट पहले से ही है। तो ऐसे समय में हमारी बहुत सीधी मांग थी सरकार से कि अपने स्टूडेंट प्लान एक्शन में सरकार को जो लोन है स्टूडेंट्स का, एजुकेशन लोन, उसको माफ करने का काम भी सरकार को करना चाहिए। इसके अलावा स्कॉलरशिप सबको अब तक चल रहा था, तो हमने कहा कि मई तक सारा स्कॉलरशिप दिया जाए, और ये सारे मांग के साथ हमने स्टूडेंट एक्शन प्लान लिया। उसके बाद हमने देखा कि मोदी सरकार ने एक नया जुमला लेकर के सरकार की तरफ से सरकार ने अनाउंस किया 20 लाख करोड़ का एक पैकेज, लेकिन वो उसका सच्चाई सबके सामने आ चुका था कि वो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था उसमें जो अब तक सरकार खर्च कर चुकी थी पैसा उन सबको जोड़ करके था, और उसका अधिकांश हिस्सा मोर देन 60% उसका जो अमाउंट था वो लोन के लिए था, या सरकार लोन देने की बात कर रही थी। तो जो पहले से ही अवेलेबल था लोगों को, कार लोन और होम लोन, ये सब पहले से था, बिजनेस के लिए लोन, ये सब कोई नया चीज नहीं था। हमने उसमें ये सवाल उठाया, जिस दिन सरकार ने अनाउंस किया उसके अगले दिन कैंपेन लिया गया, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए देश भर में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन मेंबर्स ने अपने अपने घर से इस सवाल पे सरकार का, हमने यही कहा कि ये जो 20 लाख करोड़ का सरकार का पैकेज है, इसमें स्टूडेंट एक्शन प्लान पे एक फूटी कौड़ी भी सरकार ने खर्च क्यों नहीं किया, उसका कोई एलोकेशन स्टूडेंट क्यों नहीं है। तो ये जो पूरा डिजिटल डिवाइड का को और नजरअंदाज करना है पूरे, उसको लेकर के ने बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई, और जाहिर सी बात है कि एक सीमा है, क्योंकि हम मोबिलाइज स्टूडेंट्स को नहीं कर सकते हैं, और इसी का सरकार जो है वो आज स्टूडेंट्स के ऊपर सबसे ज्यादा हो चुकी है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स को लगातार टारगेट किया जा रहा है, बल्कि स्टेट यूनिवर्सिटी तक ये मामला पहुंच चुका है। अभी 15 दिन पहले हम लोगों ने सुना होगा कि बिहार में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, वहाँ जो एक कॉलेज के का बोर्ड जो था वो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में लिखा हुआ था, तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने उर्दू को हटा दिया, और उसके विरोध में जो स्टूडेंट्स आए उनके ऊपर कार्रवाई की धमकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया जाने लगा। तो ये तो इस तरह की चीजें हर जगह ही चल रही है। जामिया के स्टूडेंट्स, जेएनयू के स्टूडेंट्स, डीयू में जो डीयू की जो फॉर्मर स्टूडेंट्स थी, आयशा की जो दिल्ली स्टेट की प्रेसिडेंट है कवलप्रीत कौर, उस भी कैसे टारगेट सरकार की। तो ये सारे चीजों को लेकर के स्टूडेंट्स को और ऐसे प्रोटेस्टर्स को सरकार निशाना न बनाए, सरकार को कोरोना से लड़ना चाहिए, स्टूडेंट नहीं। इस तरह के मुद्दों के साथ हम लोगों ने सोशल मीडिया कैंपेन और जितना उस तरह क्या उसमें और भी गुंजाइश है, और जैसा कि मैं कह रहा था पहले कि आने वाले समय में इस चीज को और ज्यादा फोकस करते हुए ये जो पूरा ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन पॉलिसी का जो पूरा एजेंडा सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, इसका और एक बढ़िया विरोध हम लोग को करना होगा। ताकि Thank you, Comrade Sandeep. I think we'll end it here because it's already 8:25 and we have overshot the time allocated to all the three speakers. Thank you, all of you, all the three speakers, Comrade Sandeep, Comrade Vicky, and Comrade Mayuk, for a lively discussion and throwing useful light on such an important issue which concerns millions of the student fraternity across the country. I'm sure in the coming days we'll see a more vigorous struggle in a very different form or more innovative forms while this pandemic continues. And the student organizations, the left student organizations, particularly the three left organizations, will continue to raise this issue of digital divide and the access to education. Thank you very much. Thank you, Sakib. thank you so much, comrade.